तुमसे मेरे काम में टांग अड़ाने को किसने कहा? Who told you to stick your nose into my business? Who told you to stick your nose into my business? ये सच में एक बहादुरी भरा काम है। It's really a daring task. It's really a daring task. काश मेरी उसके जैसी एक गर्लफ्रेंड होती। I wish I had a girlfriend like her. I wish I had a girlfriend like her. मैं बचपन से ही सिंगल हूँ। I have been single since childhood. I have been single since childhood. तुम्हारा पागलपन काबू से बाहर है। Your lunacy is out of control. Your lunacy is out of control. मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। I have never seen you here before. I have never seen you here before. तुम यहाँ नए लगते हो। You seem to be new here. You seem to be new here. तुम्हें चीज़ों को भूलने की आदत है। You are in the habit of forgetting the things. You are in the habit of forgetting the things. और रही बात भरोसे की, तो मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। And as far as trust is concerned, I don't trust you. And as far as trust is concerned, I don't trust you. तुमने ही तो मुझसे वादा किया था। You are the one who had promised me. You are the one who had promised me. तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। You should have respite. Respite यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है थोड़ी देर का आराम या फिर थोड़ी देर की राहत। You should have respite. उसका प्यार मेरे नसीब में नहीं है। I'm not lucky enough to get her love. I'm not lucky enough to get her love. वह तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठा रही है। She is taking advantage of your good nature. She is taking advantage of your good nature. ये तो होना या ना होना बराबर ही है। It's a drop in the bucket. It's a drop in the bucket. तुम जाने पहचाने लग रहे हो। You look familiar. You look familiar. इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। And this conversation here before I get furious. And this conversation here before I get furious. सच कहूँ तो मैंने ना ही कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। To be honest, I neither saw nor heard anything. To be honest, I neither saw nor heard anything. मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ। I have had enough of making you understand. I have had enough of making you understand. क्या तुमने कभी शादी करने के बारे में सोचा है? Have you ever thought about getting married? Have you ever thought about getting married? क्या तुम मेरे लिए एक घंटा नहीं निकाल सकती? Can't you spare an hour for me? Can't you spare an hour for me? मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ चुका हूँ। I'm fed up with your excuses. I'm fed up with your excuses. तुम्हारे कमरे में हमेशा चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं, मतलब तुम्हारा कमरा गंदा रहता है, चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं। Your room is always messy. Your room is always messy. मैं चाहता हूँ कि आगे से तुम ऐसा ना करो। I want you not to do so henceforth. I want you not to do so henceforth. तुम्हें मौके को गंवाना नहीं चाहिए। You should not miss the boat. You should not miss the boat. माफ़ करना, मैं इसे जल्दबाजी में भूल गया था। I'm sorry I had forgot it in haste. I'm sorry I had forgot it in haste. तुम्हें रोना नहीं चाहिए था। You shouldn't have wept. You shouldn't have wept. तुम्हें उससे ऐसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। You shouldn't have had to talk to him this way. You shouldn't have had to talk to him this way. मुझे लगा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। I felt you would not feel bad. I felt you would not feel bad. मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर पर बाहर जा रहा हूँ। I'm going out for dinner with my friends. I'm going out for dinner with my friends.
बात का बतंगड़ मत बनाओ। डोंट मेक अ फस, डोंट मेक अ फस। प्यार छुपाने से नहीं छुपता है। लव कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट, लव कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट। तुम सच को झुठला नहीं सकते। यू कांट फॉल्सिफाई द ट्रुथ, यू कांट फॉल्सिफाई द ट्रुथ। माफ़ करना, मेरा इसका ध्यान नहीं रहा। आई एम सॉरी, आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ इट, आई एम सॉरी, आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ इट। मुझे ये बोझ नहीं लगता। इट डजंट सीम टू मी अ बर्डन, इट डजंट सीम टू मी अ बर्डन। अनसुना मत करो। डोंट टर्न अ डेफ ईयर, डोंट टर्न अ डेफ ईयर। तुम्हें अपने घर वालों की समस्या को अनसुना नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट टर्न अ डेफ ईयर टू योर फैमिली प्रॉब्लम्स, यू शुड नॉट टर्न अ डेफ ईयर टू योर फैमिली प्रॉब्लम्स। हम एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे। विल ऑलवेज बी विद ईच अदर, विल ऑलवेज बी विद ईच अदर। दीवार का सहारा लेकर मत खड़े हो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझे ताना मत मारो। डोंट टॉन्ट मी, डोंट टॉन्ट मी। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आई नेवर गिव अप, आई नेवर गिव अप। वो अपनी नौकरानी के साथ शादी करने के लिए भाग गया। ही एलोप्ड विद हिज मेड, ही एलोप्ड विद हिज मेड। मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट, आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। उसने मुझे परेशानी में डाल दिया। शी गॉट मी इनटू ट्रबल। या फिर कोई लड़का है, उसने परेशानी में डाल दिया, तो आप इसके लिए बोलेंगे ही गॉट मी इनटू ट्रबल। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मे यू गेट माई एज, मे यू गेट माई एज। वह किसी भी पल यहाँ आती ही होगी। शील बी हियर एट एनी मिनट, शील बी हियर एट एनी मिनट। इस शर्ट को तुमने कहाँ से ख़रीदा? वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट फ्रॉम? या फिर इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वेंस डिड यू बाय दिस शर्ट, वेंस डिड यू बाय दिस शर्ट। मुझे नैनीताल के लिए बस कहाँ से मिलेगी? वेंस विल आई गेट अ बस टू नैनीताल, वेंस विल आई गेट अ बस टू नैनीताल। मैं उससे ये पूछना भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम फॉर इट, आई फॉरगॉट टू आस्क हिम फॉर इट। ये मेरे दिमाग से निकल गया। इट वॉज स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, इट वॉज स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। ये मेरे लिए एक बड़ा सबक है। इट्स अ बिग लेसन फॉर मी, इट्स अ बिग लेसन फॉर मी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस, आपके लिए होमवर्क है। आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ उसका प्यार मेरे नसीब में नहीं है, एंड सेकंड सेंटेंस इज़ अंग्रेजी सीखना मुझे एक बोझ नहीं लगता। इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उन पर वीडियोस बनाकर अच्छा महसूस करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।